Good morning, students, and welcome to the revision lecture series on alkenes. So far, we have covered three reactions of alkenes, that is addition of halogens, addition of HX, which was an electrophilic addition reaction, addition of HBr in the presence of peroxides. In today's lesson, we will cover two more reactions of alkenes. The first would be hydration of alkenes, that is addition of water molecule to carbon-carbon double bond of alkenes, and the second reaction will be ozonolysis, that is addition of ozone to alkenes. The next reaction of alkene is the hydration of alkenes. In hydration, there is addition of water molecule to carbon-carbon double bond. So as we can see, a general reaction of hydration of alkene is like this, wherein water molecule in the presence of concentrated sulfuric acid is allowed to react with an alkene, and this gives us an alcohol. So this is a general representation of hydration of alkenes. If you remember, when we were studying the preparation of alkenes, the very first reaction was alkenes can be prepared from alcohols by dehydration. So this particular method is just a reverse of that process. In this, water molecule is added to an alkene to get an alcohol, while in the previous process, alcohols were undergoing dehydration by using concentrated sulfuric acid. By heating them with concentrated sulfuric acid, they used to lose a molecule of water to form an alkene. So it is just the reverse process of dehydration of alcohols. Let us first see the mechanism, what happens and how the water molecule gets added to this carbon-carbon double bond. The mechanism involves three steps. In the very first step, the water molecule in the presence of an acid, because you can see the reagent that we are using is water in the presence of an acid, which is usually concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid then furnishes an H plus ion, which reacts with water to form hydronium ion. So this hydronium ion is capable of donating a proton to carbon-carbon double bond of alkene. So in the first step of this mechanism, as we can see here, because carbon-carbon double bond is electron rich and has a pi electron, this pi electron can attract a proton from this hydronium ion, and so this bond between oxygen and hydrogen, it breaks and we get water molecule as a side product, while the H plus ion, this H plus ion gets added to the carbon atom to form a CH sigma bond. While we can notice one more thing here, that as the pi bond attracts the H plus ion, the other carbon atom from which the pi bond is shifting now bears a positive charge. So this is a species, this is an intermediate in which carbon atom bears a positive charge, and that means it is a carbocation. So a carbocation is formed as an intermediate during this process. In the second step of this mechanism, this water molecule will now attack the carbocation, because the positively charged center is electron deficient in carbocation, and so it can use some lone pair donated by the oxygen atom of water molecule, and thus it happens that the lone pair of the oxygen atom is being donated to this positively charged carbon center in the carbocation, and this leads to a very fast process in which the entire water molecule gets added up to the positively charged carbon atom, and this leads to the formation of an alkyl oxonium ion. In the third step, another water molecule now abstracts a proton from the alkyl oxonium ion in this way. So the lone pair of the second water molecule now abstracts this proton. So this bond breaks and we get an OH group simply attached to this carbon atom. This reaction, this step of this mechanism is again fast, and the product that we get here is the alcohol that we wanted. Now out of these three steps, the very first step is a slow process. So that means the entire reaction, the rate of this entire reaction will depend upon only the first step, and that means this will be a bimolecular reaction, because in this step both the alkene as well as the water molecule is involved in bringing about the reaction to form the intermediate.
So this is how hydration of alkenes gives rise to alcohols. Now, we have to understand about the regioselectivity of hydration of alkenes. That means the water molecule, which is composed of OH minus and H plus ions, has a negative part and a positive part. So one of these gets attached to one carbon, and while the other one gets attached to the other carbon. So this means there is a possibility that if it is an unsymmetrical alkene, either of these can attach to any of these carbon atoms. So to decide which one will be the major product and which one will be the minor product, because in this case we'll be getting a mixture of alcohols as we used to get in previous cases. So suppose we take an example of an unsymmetrical alkene. The regioselectivity will follow Markovnikov's rule, as we have seen earlier as well during the addition reactions of alkene. The regioselectivity is governed by Markovnikov's rule. So suppose we take an unsymmetrical alkene, say propene in this case. So propene has a double bond at this position, and when we treat propene with water molecule with water in the presence of a concentrated sulfuric acid, it will definitely lead to the formation of a mixture of alcohols. The mixture is obtained because there are two possibilities for the attachment of OH minus ion and H plus ion from water molecule onto this carbon atom and onto this carbon atom. So Markovnikov's rule says that during the addition of a reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part will attach to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atom. So in case of propene, the lesser number of hydrogen atom is present on this carbon atom. That means water molecule, the OH minus ion of water molecule will attach itself to this carbon atom, while the positive ion will get itself attached to this carbon atom. And so this is the preferred way of attack of the water molecule on the alkene molecule. There is another way in which the OH minus ion can get itself attached to the other carbon atom, but that will lead to the formation of a minor product. So following Markovnikov's rule, we can see that propane 2-ol will be obtained as the major product. By this way of addition, when OH minus ion attaches itself to this carbon atom, the major product will be propane 2-ol, and so propane 1-ol will be the minor product. अब हम एल्कीन का नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो है ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस हमने अल्काइंस के केस में भी पढ़ा था. आपको याद दिला दूं कि ओजोनोलिसिस उन कंपाउंड्स के केस में होता है जहां मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी पाई बॉन्ड का होना ज़रूरी है. सो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे जिस भी कंपाउंड में होते हैं, यूजुअली अल्कीन्स एंड अल्काइंस, दे कैन शो ओजोनोलिसिस. सो ozonolysis is actually a simple process of addition of ozone to carbon-carbon multiple bonds. In this case, the hydrocarbon that we have taken is alkene. So alkene, when treated with ozone, gives us a primary ozonide in the first step. The primary ozonide is highly unstable and will undergo fragmentation, and there will be recombination inside the entire molecule. So this will give us a secondary ozonide. Let us see how this happens. You can see the structure of primary ozonide. The three oxygen atoms in ozone get itself attached to the carbon atoms like this. One oxygen atom, then the second oxygen atom, and then we have the third oxygen atom like this. They just bind up with the two carbon atoms like this, and the pi bond of the carbon atom breaks to form this sigma bond and this sigma bond. So this gives us the primary ozonide. Now primary ozonide, because it is unstable, it will undergo fragmentation and then there will be a little bit of rearrangement inside the molecule. तो आप देखेंगे कि प्राइमरी ओजोनाइड से ही हमें ये सेकेंडरी ओजोनाइड मिल रहा है. क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है? एक ऑक्सीजन तो यहाँ रह गया, लेकिन बाकी के दोनों ऑक्सीजन एटम्स इन दोनों कार्बन के साथ इस तरह से बीच में बॉन्डेड हो गए. तो पहले कुछ बॉन्ड्स टूटे यानी फ्रैगमेंटेशन हुआ और फिर कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ मॉलिक्यूल के अंदर ही, जिस वजह से इस तरह का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओजोनाइड का बनता है. ये सेकेंडरी ओजोनाइड भी अनस्टेबल है और इसलिए ये डिकम्पोज कर सकते हैं. एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट दिस ओजोनाइड्स आर हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर. सो हम इनका
ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। हमें ऑक्सीडेशन से कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे और रिडक्शन करने पर कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो उस तरह के ओजोनोलिसिस को हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। अगर रिडक्शन करते हैं यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इन केस ऑफ एल्काइंस, देन दैट टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम ले सकते हैं? सिल्वर का ऑक्साइड ले सकते हैं Ag2O, और वी कैन टेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वी कैन टेक एनी पर एसिड। जब भी हम सेकेंडरी ओजोनाइड का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही मिलेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, जो कि फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। तो पहले हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं यानी कीटोन या एल्डिहाइड मिलेंगे, और फिर उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो हाउ दिस हैपन्स? क्लीवेज कैसे होता है ये मैंने एल्काइंस चैप्टर में बताया था। ओजोनाइड का फ्रैगमेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, ये बॉन्ड क्लीव करता है और ये दो बॉन्ड यहाँ पे क्लीव करते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया मॉलिक्यूल का और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो दोनों ही हमें कार्बोनाइल कंपाउंड देंगे, ये भी देगा और ये पार्ट भी कार्बोनाइल कंपाउंड देगा, इसलिए हमें मिक्सचर मिलता है यहाँ पर। तो सपोज कीजिए यहाँ हमने जो ओजोनाइड लिया है वो कुछ इस तरह का जनरल स्ट्रक्चर है उसका, जिसमें इस साइड कार्बन एटम में एक एल्काइल ग्रुप है और ये एक दूसरा एल्काइल ग्रुप है जिसे हमने R' लिखा है। इस वाले कार्बन एटम में भी एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन एटम है। अब क्लियरली जैसे फ्रैगमेंटेशन होगा इस ओजोनाइड का, जब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ यूज कर रहे हैं विच मे बी आइदर सिल्वर ऑक्साइड और hydrogen peroxide or any sort of per acids. So in that case the bonds will break in this manner as I have shown here with the dotted pink line. So then what will happen? This bond, as you can see, will become a double bond, and this bond here also will become a double bond. Consequently we'll get a mixture of carbonyl compounds. जो इधर वाला portion है, because उसमें carbon atom में दो alkyl groups लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड O यहाँ दे देगा तो हमें कीटोन मिलेगा। और इस वाले फ्रैगमेंट में इसलिए हमें यहाँ पर कीटोन मिल रहा है एज वन ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस फ्रैगमेंट। ठीक है, अब हम दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। जो दूसरे वाले पार्ट का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है यानी इस पार्ट का, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, तो जब हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ा है और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्शन हो रहा है तो हमें एक एल्डिहाइड मिल रहा है इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हमें एल्डिहाइड दे रहा है क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है, और ये पार्ट हमें कीटोन दे रहा है क्योंकि दोनों ही यहाँ अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है इस तरह से कि ओजोनाइड का फ्रैगमेंटेशन किन पॉइंट्स पर होगा, और फिर आप उस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये रिएक्शन इस स्टेप पर ही, कीटोन और एल्डिहाइड एक स्टेप पर ही स्टॉप नहीं होगा। कीटोन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज कीटोन। सो कीटोन तो एक हमें मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, सो इसलिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने शुरू में लिया है उसी से फर्दर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कंटिन्यू होगा अंटिल वी गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि एल्डिहाइड्स को आप जब भी ऑक्सीडाइज कराएं तो आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहाँ क्या चेंज हो रहा है आप बताइए एल्डिहाइड से एसिड पहुँचने में? बस एक ऑक्सीजन एटम यहाँ जुड़ जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड का। सो यू आर गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस एग्जाम्पल, जनरल रिएक्शन, वी आर गेटिंग कीटोन एंड एल्डिहाइड। द एल्डिहाइड फर्दर अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव अस अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है, उस बेसिस पर हम स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, अल्कीन है, तो अल्कीन पर ही पूरा डिपेंड कर रहा है, अल्कीन के स्ट्रक्चर पर ही पूरा डिपेंड कर रहा है कि हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। बिकॉज बाकी काम तो ऑक्सीडेशन का या ओजोन के एडिशन का या ओजोनाइड बनने का काम तो ओजोन कर रहा है, लेकिन अल्काइल ग्रुप्स कहाँ कितने बनेंगे और किस तरह का एल्डिहाइड कीटोन बनेगा
वो डिसाइड करने के लिए हम अल्कीन को ही समझ के लेते हैं कि हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से वैसे अल्काइल ग्रुप्स अल्कीन में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको एसीटोन चाहिए, एसीटोन मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन एंड दिस इज अ कीटोन। अगर आपको ये चाहिए तो एल्कीन आपको कौन सा लेना पड़ेगा कि इस पार्ट से आपको ऐसा एल्कीन लेना होगा जो जिसका एक पार्ट टूट के आपको ये एसीटोन मिल जाए। So say suppose that means we will start with an alkene which has at least this kind of structure in its this part in its structure. तो ये पार्ट होना ज़रूरी है अगर हम एसीटोन बनाना चाहते हैं अल्कीन से थ्रू ओजोनोलिसिस। अब इस पार्ट में आप जो भी लेंगे वो आपको दूसरा पार्ट देगा। अगर आप यहाँ भी CH3 लेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का मिल जाएगा। नीट एंड क्लीन सिर्फ एसीटोन ही मिलेगा। तो अगर सिर्फ एसीटोन बनाना है तो हम इस तरह के एल्कीन से शुरू करेंगे और उसी का ओजोनोलिसिस करेंगे। और अगर हमें मिक्सचर चाहिए, अगर हम कुछ और बनाना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, हमें चाहिए एक एसीटोन और एक एसिटिक एसिड चाहिए मान लीजिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक ऐसे एल्कीन से शुरुआत करेंगे जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो। तो इससे क्या होगा, इस पार्ट से हमें एसीटोन मिलेगा और इस पार्ट से हमें मिलेगा, पहले तो एक एल्डिहाइड मिलेगा जो कि एसिटल्डिहाइड होगा, लेकिन फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके हमें एसिड मिल जाएगा। तो पहले इसमें से हमें एसिटल्डिहाइड क्या मिलेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OHCH3, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, तो रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट एल्डिहाइडिक स्टेज, इट विल कंटिन्यू फर्दर एंड सो it will oxidize this aldehyde further to give you a carboxylic acid, and this carboxylic acid has 2 carbon atoms 1 and 2, so it is ethanoic acid or acetic acid। तो इस तरह से हम एल्कीन्स का सिलेक्शन करते हैं हमें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए ओजोनोलिसिस में उसके लिए। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस में, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होगा और इसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें वो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब ओजोनाइट का रिडक्शन होगा, यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ फिर इस रिएक्शन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट ले लें या फिर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हुए, जैसे जिंक एसिड, जिंक के साथ आप इथेनोइक एसिड ले लीजिए या कोई और एसिड ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आप ले सकते हैं, तो वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आप H2 ओवर अ कैटलिस्ट से निकल, इसको भी ले सकते हैं, ये भी एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम जिंक एसिड या H2Ni लेते हैं तो इन दैट केस द ओजोनाइट विल अंडरगो फ्रैगमेंटेशन। ओजोनाइट कभी भी फ्रैगमेंट हो, सेकेंडरी ओजोनाइट, तो वो इस तरह से ही फ्रैगमेंटेड होता है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हो या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हो। लेकिन कहाँ अंतर आता है, अंतर आता है प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो पहले तो कार्बोनाइल कंपाउंड ही आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उसका फर्दर रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जहां हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की ही तरह हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलेंगे, यानी कीटोन और एल्डिहाइड। और ये कैसे बनते हैं ये मैंने अभी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बताया है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यूजिंग वीक रिड्यूसिंग एजेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहाँ एल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो कि यहाँ कुछ नहीं वैसा होने वाला है। यहाँ जैसे ही कीटोन और एल्डिहाइड बना वो यहीं इसी स्टेज में रुक जाएगा रिएक्शन, और रिएक्शन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। सो यू विल गेट अ कीटोन एंड एन एल्डिहाइड डिपेंडिंग अपॉन अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या लिया है। एल्डिहाइड नहीं भी बन सकता है, हो सकता है आपको 2 कीटोन मिले, या फिर हो सकता है आपको 2 एल्डिहाइड मिले, या फिर आपको एक कीटोन और एक एल्डिहाइड भी मिल सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट अल्कीन यू हैव टेकन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम जिस एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हैं उस अल्कीन में एक साइड में 2 अल्काइल ग्रुप है और एक साइड में एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम था, इसीलिए हमें इस पार्ट से कीटोन मिल रहा है और इस पार्ट से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है।
अब मान लीजिए अगर एक भी हाइड्रोजन एटम मौजूद ना हो एल्कीन में, ऐसा स्टार्टिंग एल्कीन हम लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, आइदर सेम टाइप ऑफ कीटोन और अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कीटोन्स। और अगर हम इस साइड में भी एक ऐसा ले लें कि यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो हमें इस पार्ट से भी एल्डिहाइड मिलेगा और इस पार्ट से भी एल्डिहाइड मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ ओजोनोलिसिस से क्या बन रहा है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन दैट यू आर स्टार्टिंग विथ। नाउ कमिंग टू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, these two reagents are considered to be very strong reducing agents. So what they can do is they do not stop the reaction at carbonyl compound. जैसे इसके पहले वाले केस में आपने देखा ना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स यहाँ बन रहे थे, तो इस स्टेज में रिएक्शन अब स्टॉप नहीं करेगा। पहले तो यही बनेंगे, लेकिन उसके बाद इन दोनों का भी फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। कीटोन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और एल्डिहाइड को भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। कीटोन के रिडक्शन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अल्कोहल। तो अब यहाँ पे जैसे पहले फ्रैगमेंटेशन हो रहा था वैसे ही फ्रैगमेंटेशन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, इस पार्ट से आपको एक फ्रैगमेंट मिलेगा, इस पार्ट से आपको एक दूसरा फ्रैगमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 फ्रैगमेंट इसलिए आपको मिल रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है दोनों फ्रैगमेंट्स का। अगर सेम स्ट्रक्चर होता तो आपको एक ही कंपाउंड मिल रहा होता। तो अब समझ लीजिए इस पार्ट से आपको कीटोन मिला, इस पार्ट से आपको ये कीटोन मिल रहा है और इस पार्ट से आपको ये एल्डिहाइड मिल रहा है। लेकिन रिएक्शन तो इस स्टेज में स्टॉप होने वाला नहीं क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अब यूज़ किया है। तो दिस रिएक्शन विल फर्दर प्रोसीड अल्टीमेटली व्हेन द कीटोन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू अ सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन के दौरान क्या होता है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वी ऑल नो दैट। सो इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन अटैच होगा और इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। सो हमें मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक इसी तरह से एल्डिहाइड में भी आप देख लें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस किस पॉइंट पर हो रहा है? एक तो इस ऑक्सीजन के साथ, तभी जाकर अल्कोहल बन रहा है, और एक इस पॉइंट पर यानी कार्बन एटम पर। तो जैसे ही ये बन रहा है, इस कार्बन एटम पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद था। मिनिमम 2 हाइड्रोजन अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े हैं, मतलब अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो इसलिए ये जो ग्रुप है दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो इस केस में हमें क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको बस याद रखना है कि जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ओजोनाइड का रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अल्कीन का कैरी आउट करा रहे हैं, तो इन दैट केस हमें एक कीटोन मिलता है, एक एल्डिहाइड मिलता है बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोनाइड। मतलब हमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलेंगे। वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, और इनका रिडक्शन अब किस में होगा? अल्कोहल्स में। क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम रिड्यूस करते हैं तो हमें पहले अल्कोहल्स ही मिलता है, और अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलता है पहले, और फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो भी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बट एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसा कि हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में देखा। तो ये था ओजोनोलिसिस और उसके 2 टाइप्स, और रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस।